Welcome to Our Today podcast. Let's talk. This is your host Muhammad Affan, and today we are doing a special episode regarding logistics in Pakistan और ये इंडस्ट्री किस तरह चलती है. तो इसके लिए हमने अपने एक IBA alumni को बुलाया है, आदिल निसार, और उनकी टीम उनकी कंपनी को ओवेयर. और इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा कमाल का है क्योंकि ये एक IBA alumni है और इनके पार्टनर है वो बेसिकली IBA टीचर रह चुके हैं. तो इनके बारे में हम बात करते हैं, इनके सेक्टर के बारे में, इनकी कंपनी के बारे में, उनका गोल क्या रहता है. तो let's just talk about, let's just introduce our guest. आदिल निसार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू फॉर हैविंग मी अफान. राइट. तो आदिल, हमने आपका कॉम्बिनेशन की बात की कि यार आप ओवेयर के फाउंडर है, को फाउंडर. तो लेट्स टॉक अबाउट आपकी कंपनी के बारे में. आपने कंपनी कैसे फाउंड की और आपके पूरी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें. बिल्कुल यार. सो आई एम द co-founder. I graduated from IBA in 2017, did my bachelor's in accounting and finance. When I was graduating, like all graduates, I was also applying to a lot of jobs. So I think one thing that changed my direction in life was I joined Careem. So initially I was an intern there, and then eventually I was. कौन सी ईयर की बात है? This is 2017. So I was basically उस वक्त मुझे भी एक FMCG company से भी management training की आई थी, and I was interning at Careem, and I was like, because the experience and the innovation and the difference in every, like, it was very diverse. So I was like, yeah, let's give it a try. So I think that was a turning point कि अगर मैं बिल्कुल ही FMCG company में चला जाता तो मैं भी अभी मैं कहीं brand manager या कुछ और होता. But I think that's where my journey started, and I was interning there, and then eventually I was leading the B2B vertical that was Careem for Business across Pakistan. So we were helping businesses with mobility as a solution. जो आपने, so the difference was you had better rated captains, better SLAs, and you can build your right to the company. So काफी लोग उसका फायदा उठाते थे. And after that, I think I moved to the Raj, and I was involved in 2018. So उसी साल में आपने मतलब. Not the same year, so it was approximately 2 years. So I joined the Raj late of 2018, and उस वक्त तक Careem का acquisition भी हो गया था. And उस वक्त Alibaba ने the Raj को acquire किया था, and उस वक्त my team was involved, and I was involved in the launch of the Raz Mall for the first time. So it was a great learning experience. But generally, the Raz mein, there was a lot of learning from different brands because e-commerce at that point in time was rising in Pakistan, and a lot of big brands were showing interest. So got a lot to learn from that. But eventually, when my shares vested, I come from a business family background. I wanted to do my own business. So I started my company called Novo. So it was a manufacturing concern distributing LED lights across Pakistan. So मैं China से raw materials procure करता था, used to assemble them in Pakistan and then distribute with my own brand. तो वो एक journey थी because मैं लाहौर में, कराची से लाहौर move हुआ था because Lahore I saw was a bigger opportunity than Karachi because Lahore unlocked a bigger area like KP है, Lahore, like पूरा Punjab and then north of Pakistan. So I set up my facility over there और पूरी शादरा में, और वहाँ शालमी एक उनकी लोकल मार्केट है, वहाँ घूमता था कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स और ढूंढते हैं. I think alhamdulillah the journey started from one type of SKU, and I grew my product portfolio to about 200 different SKUs, sold about 2 million products in the first year. तो मुझे समझ आ गई थी कि like how I can penetrate into the market. I think Oware came into that point where I wanted to expand further. तो ये अब 2020 तक आप यही कर रहे थे? जी बिल्कुल. तो उस वक्त कोविड बस स्टार्ट हो रहा था. तो I wanted to expand my distribution further, but the main problem was warehousing. तो challenge ये था कि for a brand or small medium brand, you don't have a lot of capital कि आप जाके warehouses खरीदें पूरे पाकिस्तान में या lease पे भी लें. And then the second hurdle was hiring supply chain talent. So that was not my expertise. My core business was brand, like product development and manufacturing. और उसके बाद have an integrated software के manage भी करें सब चीज़ों को. So that was a hurdle. That's where I connected with Raza through my brother. तो मेरे भाई के वो बैचमेट थे लम्स में. तो I said कि यार मुझे तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ ही नहीं आती और मुझे तो ये सेल्स बढ़ानी है अपनी. लाहौर में तो मेरे पास 1000 दुकानें आ गई हैं और मेरी तो इतनी सेल्स हो गई, अब मैं सेल्स किस तरह बढ़ाऊँ. तो I connected with Raza, और he had vast experience in supply chain. So he was this. अच्छा, ये रज़ा वही है जो IB टीचर रह चुके हैं? बिल्कुल. रज़ा काज़मी was teaching at IBA. I think MBA में economics पढ़ा रहे थे वो. तो वो जर्नी इस तरह थी. I called him up and I said कि यार मेरा तो ये प्रॉब्लम है,
and he didn't share his experience because तो उनके पास basically he's been in supply chain since the last 17 years. तो वो पहले Maersk में he was the CFO there, and then Hutchison Ports के he was the CFO, and then Burke Corporation में he was the CFO. तो he had seen, so Burke is also a distributor. Maersk का आप लोग को पता है, it's a shipping line, and then Hutchison Port is one of the largest deep container ports in Pakistan. So he had that innate knowledge कि supply chain में क्या सारी चीज़ें हो रही हैं. So I think मैं when we started on a call, मैं तो खैर बिल्कुल उनसे बोलता रहा कि यार ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है. So eventually I think what we like, he taught me some basics के distribution में you have to have a distributor principle, इस तरह route to market create होता है. So I did an experiment after the call. So actually it was a very long call, like 2 घंटे की call थी. So what I did was I opened up a new fulfillment center in Mardan. It took me about 5 months. तो मैंने जाके पहले वहाँ warehouse ढूंढा, देखा कौन सा मेरे लिए सही होगा, कितनी space मुझे चाहिए, and then I hired a team over there. Then जो मेरा software था, मैंने देखा कौन सा software ऐसा जो मैं अपने head office पे, अपने warehouses पे भी use कर सकता हूँ. And then an effort of 4 months, so I was able to launch. But the results I saw were really impressive. So my revenue grew by 30% just because I had unlocked another area of sales. मेरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, ऑर्डर आता था, वहीं से फुलफिल हो जाता था. सो बट फिर जब बिकॉज आई हैड दैट बैकग्राउंड फ्रॉम करीम के मैंने नंबर क्रंचिंग की है, देखा कि यार किस तरह कॉस्ट मेरी बेहतर हो सकती है. So what I saw was the observation was that I was only using. अच्छा, इधर मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये बेसिकली जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बेसिकली फुलफिलमेंट का, तो फिर then this journey with Oware like literally started किया. Yeah, so basically दिमाग में आना शुरू हो गया था उस वक्त. मतलब ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं सॉल्व अपने बिजनेस के लिए कर रहा था, बट मैंने ये देखा कि तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी कि बिजनेस वेयरहाउस तो खोल लिया, ये 50% वेयरहाउस मेरा खाली है. अब इमेजिन अगर मैं रेंटल भी दे रहा हूँ, मेरे लोग भी हायर किए हुए, वहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर भी लगा, तो मेरी कॉस्ट तो इट्स नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, फिक्स्ड है, आपको एग्जैक्टली मुझे तो देनी पड़ रही है. एंड देन इमेजिन जो लोग जिनका ब्रांड बहुत अच्छा है बट उनके पास पैसे नहीं है एक वेयरहाउस खरीदने में, बिकॉज टू गेट अ वेयरहाउस यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द स्पेस, फिर आपको एडवांस रेंट देना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, बहुत ज़्यादा खर्चा है. सो दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट आर नॉट एबल टू. तो आप ये देखते होंगे कराची का ब्रांड लाहौर में नहीं है, लाहौर का ब्रांड कराची में नहीं है. तो ये बड़ी एक मिथ चलती है कि पकोला नहीं मिलती लाहौर में, या नहीं मिलती. मतलब आई एम जस्ट सेइंग लाइक यू नो इस तरह की चीजें, स्लिम्स नहीं मिलती, इस तरह की चीजें होती हैं. लाइक दे रियली गुड ब्रांड्स इन लाहौर जो पाकिस्तान कराची में नहीं है, जो कराची के ब्रांड्स हैं जो लाहौर में नहीं है, या इस्लामाबाद है. तो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है इस्लामाबाद चाय, वो कराची में नहीं है. इस्लामाबाद चाय, yeah, it's one of the top selling teas in Pakistan. But you know, तो distribution patterns इस तरह के हैं हर किसी के, just because हर किसी की supply chain is fixed in certain areas. So that's where literally the journey for Oware started. And उसके बाद so Raza was also advising Retailo, जो एक और startup है पाकिस्तान में. So वहाँ से उनको भी यह है कि काफ़ी B2B startups भी पाकिस्तान में आ गए हैं. So they're also struggling with opening up warehouses because they don't have that experience, and then it's a lot of fixed cost. So जिस तरह ecosystem develop हो रहा था पाकिस्तान का, so he also realized that there is a need for an outsourced fulfillment player. And अगर globally भी हम देख रहे थे, there were a lot of companies that were starting up. So not just the e-commerce companies, but if you look at B2B supply chain in itself, कि जिसमें manufacturer की supply chain किस तरह हम reinvent कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा startups भी आ रहे थे. So I think he called me back and I said यार ये problem तो बहुत real है. तो उन्होंने कहा मेरा experience भी करीम का है, and I have experience from Daraz as well, and he had experience from Maersk and Hutchison Port. So I think that was a natural blend के यार I think we should do something about it. And I think मैं तो आपकी वो जो पुरानी कंपनी वो चल रही है या बंद कर दिया? यार वो इस तरह है कि मैंने completely छोड़ दी है वो कंपनी, और वो अब मेरा भाई देख रहा होता है. But the brand is there. मेरी इन्वॉल्वमेंट जीरो है, प्रैक्टिकली जीरो है उसमें. तो लेकिन स्टिल माय बेबी तो देखता रहता हूँ मैं. बट ये सीन है. तो व्हेन वी स्टार्टेड ओवेयर, तो दैट वाज फॉर दिस लाइक द सिंपल मिशन कि वी नीड टू हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो, एंड स्पेशली स्मॉल मीडियम बिजनेसेस, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू लाइक सप्लाई चेन रिसोर्सेज, एंड देन ऑल्सो उनके पास नॉलेज भी नहीं है. So that's where we started back in January 21. Did a lot of project ideation कि किस तरह हो सकता है, because this was completely something new we were doing पाकिस्तान में. Problem ये है कि यहाँ पर 3PL operators हैं. 3PL क्या होता है? Third party logistics होता है कि जैसे आप एक कंपनी और आप अपनी सप्लाई चेन किसी को आउटसोर्स कर देते हैं. यार आप मेरा वेयर हाउस मैनेज करें,
आप मेरी इन्वेंट्री मैनेज करें, आप मेरी लॉजिस्टिक्स मैनेज करें, और आप कंपनी जो इन्वॉल्व होगी वो आप प्रोडक्ट बनाने में होगी. सो यू विल मेक द प्रोडक्ट, यू मार्केट द प्रोडक्ट, बट आपकी सप्लाई चेन कोई और मैनेज कर रहा होगा. तो एजिलिटी का आपने नाम सुना होगा. एजिलिटी इज अ 3PL ऑपरेटर, एंड देन वी हैव अदर 3PL ऑपरेटर्स. तो बेसिकली हम लेट्स डिस्कस दी चैलेंजेस जो आपको फेस आई कि यार ओवेयर आपने बना लिया, लेट्स डू इट. मगर अब ओवेयर को आप बता रहे थे कि 2 साल हो गए चलाते हुए, अराउंड 2021 में आपने बनाई थी, तो इट्स अराउंड 2 इयर्स होने वाले, तो यह हो गए. तो अब चैलेंजेस आपने क्या क्या फेस किया यार? आपने कंपनी बना ली, मगर व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू वर फेसिंग एट दैट पॉइंट? I think the first challenge when we started the company was finding the first customer. Because आप खुद तो थे ना. मैं खुद तो था, लेकिन जब दूसरे कस्टमर के पास जाओ तो बोलते हैं आपका कस्टमर कौन है. दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन. ये इन्वेस्टर्स के साथ भी यही होता है, वो पूछते हैं कि आपका इन्वेस्टर कौन है. बट आई थिंक that took a lot of time and effort कि हम हर किसी के पास, तो हम दोनों फाउंडर्स हर कस्टमर के पास पर्सनली बैठे होते थे एवरी डे एवरी नाइट. उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी, छोटी सी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे. सो वी हैड अ कस्टमर टू सुपरमार्केट इन कराची. उनका एक प्रॉब्लम था शुगर का, सो उनको शुगर स्टोर भी करनी होती थी और फिर उनको पैक भी करनी होती थी. तो वी लाइक यार ये आप क्यों इस पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वील हेल्प यू विद दैट. आई थिंक दैट्स वेयर वी स्टार्टेड co-packing. So yeah, it was basically we were storing their sugar and then distributing it to their stores in Karachi. And उनके लिए प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने अपना जो वेयरहाउस बनाया हुआ था अपनी रिटेल स्टोर के नीचे बनाया था. दे वर यूजिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल स्पेस स्टोरेज के लिए. वहाँ पे वो अपनी रिटेल स्पेस बना सकते थे. दे कुड सेल मोर प्रोडक्ट्स, राइट. सो आई थिंक दैट वाज देयर एम्बिशन एज वेल, एंड दैट्स व्हाई वी वर मैनेजिंग देयर इन्वेंट्री सेंट्रली. एंड उनको बहुत फायदा हो रहा था बिकॉज दे वर पेइंग अस ऑन अ फ्लेक्सिबल मॉडल. So they were not investing in the advanced rents, they were not investing in people, they were not managing the system. We were doing everything for them. And that's why they had that sense कि अच्छा ठीक है, अब हम अपने brand पे focus करते हैं. My supply chain will be in the hands of these guys. And then that's where they were able to open 2 more stores in Karachi. So that's, I think ये एक हमारा basic USP थी to brands as well कि यार. And Pakistan, it was difficult to explain this to most brands. तो ये सबसे आप कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोगों को समझाना, एक्सप्लेन करना, ये प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी इशू. बिल्कुल. तो आई थिंक बिकॉज सप्लाई चेन पाकिस्तान में बहुत, सो इफ यू लुक एट द इकोसिस्टम इन पाकिस्तान, इट्स वेरी एंटीक्वेटेड, इट्स मैनुअल, इट्स अनइंटेलिजेंट. अभी तक चीजें पेन पेपर के थ्रू हो रही हैं. तो मतलब अभी तक उनको हम तो सप्लाई चेन 4.0 की बात करते हैं, बट हम शायद 2.0 3.0 पे भी नहीं है अभी. सो लॉट ऑफ दैट इज हैपनिंग मैनुअली. एक लीनियर सप्लाई चेन मॉडल है विच इज बेसिकली सप्लायर, manufacturer, distributor, retailer. So everyone is planning at their own end. जो इतने ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं तो इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन और डिलेज है. हर बंदे का अपना सिस्टम है. So किसी की ERP लगी हुई है, कोई रजिस्टर पे मैनेज कर रहा है, किसी का SAP भी लगा होगा, like very high end software. None of them are integrated. The flow of information is not synchronous. तो इशू ये आ जाता है कि फ्रिक्शन आ जाती है. फिर एक बंदे के एंड पे डिले आएगा तो पूरी सप्लाई चेन विल गो इनटू अ बॉटलनेक. सो और दुनिया में अब क्या हो रहा है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स रेडियल सप्लाई चेन, जहाँ पे एक कंट्रोल टावर होता है एंड दे आर मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन. फर्दर अगर आप पाकिस्तान में देखें तो सबसे क्रिटिकल जो, लाइक आई मेंशन फॉर माय स्टोरी, स्मॉल बिजनेसेस के लिए कोई फुलफिलमेंट प्लेयर ही नहीं है. So you have very big, very large, amazing companies operating in Pakistan, but they're mostly working with the large corporations for long 5-year, 10-year contracts. And personally, in my experience, I've not seen a 3PL operator जो एक छोटे business को enable कर सके कि यार you want to store 2 pallets or you want to store 5 cartons of product, आप flexible तरीके से store कर लें. So that small business essentially has to do their own warehousing. अब आप अगर market में देखें तो हमारे पास गोदाम वाले हैं, हमारे पास बड़े 3PL ऑपरेटर्स हैं, और फिर हमारे पास रियल स्टेट लैंडलॉर्ड ओनर्स हैं जिनके वेयर हाउसेज हैं. तो जो गोदाम वाले हैं उनके अगर आप SLAs देखेंगे तो ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स देखेंगे, आप कहेंगे यार मैं तो अपने प्रोडक्ट्स नहीं रख सकता. फॉर एग्जांपल फॉर मी व्हेन आई वाज मैन्युफैक्चरिंग LED बल्ब्स, तो मैं नहीं रख सकता था बिकॉज दे वुड गेट डैमेज्ड. तो नॉर्मली गोदाम पे आप प्लास्टिक, सीमेंट, स्टील, yarn देखेंगे जहाँ पे इतनी डैमेज का या कंडीशंस का नहीं. बट देन देयर इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस इन पाकिस्तान जिनको प्रॉपर वेयर हाउसिंग चाहिए विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, ताकि हैंडलिंग सही हो, SKU टैगिंग सही हो. बिकॉज तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन सप्लाई चेन दैट वी वर सॉल्विंग. सो हमने फिर तो मुझे अगर मेरी सपोज इफ आई हैव अ कंपनी, जैसे मेरी कंपनी है, मैं भी प्रोडक्ट्स है मेरे पास, अब मुझे अगर मैं आपके पास आया हूँ एज अ क्लाइंट और मुझे आई वांट टू यूज योर सर्विस, तो मेरे लिए क्या प्रोसेस है, मतलब क्या पाथवे? मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है. पहले आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, यू विल साइन अप ऑन आवर वेबसाइट.
हमारे पास एक हमारा ओन एक्सेस फीचर है जिसपे यू विल सी द नेटवर्क दैट वी हैव. उस नेटवर्क पे यू कैन सी के व्हाट इज द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फॉर यू. क्या आपने लाहौर से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो वहाँ पे आपको क्या कॉस्ट आ रही होगी, अगर कराची से करनी है क्या कॉस्ट आ रही होगी, इस्लामाबाद से करनी है तो क्या कॉस्ट आ रही है, विदाउट फिजिकली गोइंग टू लाहौर. उसमें आपको वेयर हाउस की सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी, उसकी कैपेसिटी भी आ रही होगी, उस पर उसके फीचर्स भी आ रहे होंगे. तो आप घर से मेरा सामान उठा कर लीजिएगा. बिल्कुल. सो जब आप बुक करेंगे वेयर हाउस, यू बुक दैट स्पॉट. उसके बाद आप कहेंगे कि यार मुझे मेरा प्रोडक्ट्स पिक कर लो. तो दैट्स बेसिकली आपने अपनी सप्लाई चेन का पहला पॉइंट रख दिया कि यार यहाँ से मैं काम करूंगा. फिर आप कहेंगे यार नाउ आई नीड टू पिक माय प्रोडक्ट्स. तो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक ऑर्डर बनाएंगे, कहेंगे यार मेरा प्रोडक्ट्स आपके वेंडर से या आपकी फैक्ट्री से जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट्स पिक करने हैं वो हम पिक करके देंगे आपको. उसके बाद जब वो स्टोरेज में आ जाएगा, यू विल गेट नोटिफिकेशन दैट दिस मच स्टॉक इज इन स्टोरेज एट दिस फैसिलिटी. फर्दर अगर आपका लेट्स से आपका कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, या आपके पास अगर हो सकता है कि आप अपना व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेते हैं, तो यू कैन गो टू आवर पोर्टल एंड यू कैन एंटर द ऑर्डर एंड आपको व्हाट्सएप पे ईमेल करने की जरूरत नहीं होगा. आवर टीम इन दैट वेयर हाउस विल फुलफिल योर ऑर्डर. आप उसमें एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट विजिबिलिटी कि आपकी इन्वेंट्री कितनी हो गई, आपके ऑर्डर स्टेटसेस क्या हैं, एंड देन आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन और ऑर्डर रिसीविंग के साथ आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे. इसमें सिर्फ एक मैं आपको फर्क बताता हूँ, वी आर नॉट डूइंग लास्ट माइल. तो हम लोग घर पे डिलीवरी नहीं करते. अच्छा, वो जो जी, तो हम वेंडर आएगा और कलेक्ट करेगा. बिल्कुल. हमारा जो एक्सक्लूसिव फोकस व्हाट वी हैव सीन हैपन इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान इज दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन in the last mile space. So a lot of companies, courier companies आ गई हैं जो last mile को particularly solve कर रही हैं. But जैसे मैंने starting में कहा कि B2B supply chain तो start होती है supplier से. तो उस जगह पे अभी तक it's very antiquated. तो अभी वहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो उस स्पेस को reinvent करी है. And that's where we see that we need to help these guys. And seeing the experience जो both Raza and I have, I also focused on a lot of B2B partnerships and B2B contracts at Careem, and Raza has also been in a B2B company. So I think that's where we want to solve for businesses in Pakistan, and that's where we see कि bigger opportunity भी ज़्यादा बड़ी है because बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज. तो मतलब basically आप Oware का expansion क्या समझते हैं? In the next 10 years, what do you see? Yeah, so there are two things that are happening at Oware. The first thing is we are trying to integrate more services. तो जैसे अभी हम करते हैं logistics and warehousing, तो अब हम अपने client को air और sea freight भी देना चाहते हैं. And especially because हमारे जो investors हैं they're Flexport. तो Flexport is a global supply chain technology company. तो we see a lot of backing from them कि हम इस तरफ भी जाएं. And the second is international expansion. What we are seeing and the observation from a lot of stakeholders in Pakistan, and then global stakeholders, हमारे investors and obviously people that we are associated with, is that similar problem exists for the region. And we have not seen any other player going for this. आज ही coincidentally I have a meeting with a company who's a company in Dubai, and they want to start operations in Pakistan. And they're like, yeah, we don't want to be physically present in Pakistan. So I want you guys to manage everything. And order taking can happen on WhatsApp, can happen on email, can happen through the customer portal or their own platform. But fulfillment के लिए they need physical presence. So that's why they're exploring a relationship with us. कि यार you handle everything in Pakistan, we'll be in Dubai and we'll manufacture the products, we'll send it to Pakistan and you can distribute them. And that's where we actually see a lot of value. Without spending in a lot of investment, आप ऑपरेट कर सकते हैं. राइट. अच्छा, बिफोर हम आगे बढ़े, मुझे हमारे कुछ टीम ने कुछ रैपिड फायर रेस किया आपके लिए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बस आप वन वर्ड आपको जो जहन में आए उसके बारे में बताएं. ठीक है. लॉजिस्टिक्स इन पाकिस्तान. Antiquated. Oware. Revolutionizing the supply chain. Careem. I think Careem के लिए बहुत ज़्यादा words है, but I think knowledge. Financial literacy. Much needed in Pakistan. And IB today. I think मेरे टाइम पे भी होता शायद IB में. अच्छा, तो आदिल मुझे सवाल पूछना है कि यार अक्सर बच्चे, आजकल हमने स्टोरी चलाई थी रिसेंटली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो बच्चों से हमने पूछा था कि आदिल आ रहा है हमारे शो में, तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछे. तो उन्होंने बच्चों ने सवाल किया, तो सबसे बड़ा सवाल तो सबका था मेजोरिटी का, वो ये था कि यार आदिल ने तो पैसे उठा लिए मार्केट से फॉर हिज स्टार्टअप, तो हम अपने स्टार्टअप की फंडिंग कैसे ले. बिल्कुल यार, आई थिंक फंडिंग लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बिल्कुल नहीं है आजकल पाकिस्तान में.
A lot of precedents have already been set. Hmm. Airlift, Bazaar, Aware, Dastagir, a lot of startups that have raised significant rounds from very big investors. तो पहले इन्वेस्टर जो होता था कि ग्लोबल इन्वेस्टर शायद डरे पाकिस्तान से, but that's not the case. He's talking and he's invested into Pakistan both physically and materially कि वो उसके पैसे लगे हुए हैं. So I think सबसे पहली ज़रूरत है कि I think the idea needs to be there. I think फंडिंग से पहले अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है ना, उस पर आप फोकस करें. फंडिंग विल कम इवेंचुअली. So हमारे साथ भी अगर हम देखें तो when we started Aware, yes, funding took a lot of time for us because we had to perfect the model first. बट कोई भी इस तरह नहीं करें चीज़ को, एक होता है ना फैट क्रिएट करके आप फंडिंग रेस तो कर लेंगे, बट मेक श्योर दैट जो भी आप चीज़ करें एडिंग वैल्यू. 3 चीज़ें में वैल्यू आ सकती है. या तो पैसे कमा सकते हैं, कोई मॉडल इस तरह का जो बहुत पैसे कमा के दे. तीसरा है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. जो मुझसे आपने पूछा ना, करीम का एक क्वेश्चन आपने पूछा, तो करीम का सबसे बड़ा, आई एम नॉट श्योर इफ देयर मेकिंग मनी राइट नाउ, मुझे नहीं पता, आई हैव लेफ्ट करीम, बट सबसे बड़ा जो करीम की पॉजिटिव चीज़ है, इट्स इम्पैक्ट ऑन द रीजन. जो अभी भी आई थिंक मुदस्सिर, आई हैव नॉट बिन, मतलब मेरी कभी डायरेक्ट उनसे इन्वॉल्वमेंट नहीं है बिकॉज ही वाज अ सीईओ, मैं तो पाकिस्तान में था. बट व्हेन यू लुक एट हिम एंड यू सी हिम स्पीकिंग, उसका जो इम्पैक्ट है ऑन नॉट जस्ट करीमर्स बट ओवरऑल अदर स्टार्टअप फाउंडर्स, एंड देन ऑब्वियसली पूरे रीजन को अगर आप देखें, हाउ करीम की वजह से कितने और स्टार्टअप्स आगे आ गए हैं. सो आई थिंक वो इम्पैक्ट के पीछे भागें, फंडिंग खुद ही आ जाएगी. देयर आर लॉट ऑफ VCs इन पाकिस्तान एंड इन ग्लोबली जो एक्टिवली स्टार्टअप्स को ढूंढ रहे होते हैं. दे खुद ईमेल करते हैं आपको. इफ योर आइडिया इज रियली जेन्युइन, if you're making progress, people will message you directly. There are a lot of events happening right now. 92 disrupt हो रहा है. आप जा रहे? जी बिल्कुल. एंड काफ़ी उसमें VCs ने अपने ग्लोबल, अपने पाकिस्तान में ऑफिसेस खोल दिए हैं. सो जो मैं अगर बताऊँ, 2-3 VCs को मैं जानता हूँ जो ग्लोबल VCs हैं, they've opened up offices in Pakistan and they're actively looking out for great companies because they've seen great talent from Pakistan. They know that Pakistanis are amazing people. They've done amazing things in the region and in globally अगर आप देखें. So I think that's where VCs have the confidence कि यार ये लोग कुछ कर सकते हैं. But एक मैं फिर भी एक caution दूंगा कि कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागिएगा. Make sure your idea is amazing. Be invested in your idea. Make sure कि आपको personal satisfaction मिल रही है. So that's very important. And if that's the case, I think you will find money, you'll find success, you'll find customers, and then eventually, obviously, inshallah, you'll make Pakistan proud as well. Thank you, Adil, for sharing this insight. मुझे तो बहुत मजा आया. I hope आपके पास अगर और टाइम होता तो हम और डिस्कस करते. मगर I hope the audience loved the conversation because I certainly did. और अगर आपको और ऐसे एपिसोड्स देखने तो पीछे please drop a comment and tell us हम किसको बुलाए. And because we had a lovely conversation and I hope you enjoyed it. See you next time. Allah Hafiz.